A very warm welcome to you all students. Today we are going to start a new chapter and that is structural organization in animals. And since we know that 30% of the syllabus in CBSE board has been deleted, so in this chapter we have to study technically only about the animal tissues. Okay, so let's get started. So first of all you must know that what is a tissue. Okay, so basically, tissue can be defined as group of cells which are structurally and functionally similar to each other, and they are from a common origin. Okay, so that means there is a group of a collection of cells which are structurally similar and they are performing almost similar functions. And what is the most important criteria about defining a tissue is that is they belong to a common origin. Okay, so such group of cell is termed as tissue. Now if that tissue is found in the plants, so that is termed as plant tissues, and if it is found and the tissues are found in the animals, so they will be called as animal tissues. Now the types of animal tissues which we have to study in this chapter is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nerve tissue. Okay, so let's get started with the epithelial tissue. Now, as from the word, it is very clear. Epi means outermost. Okay, epi word का मतलब क्या होता है? That is outer, ऊपर या बाहर की तरफ. Okay, so we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. Epithelial tissue भी बोल सकते हैं उसको और epithelium भी बोलते हैं उसको. ठीक है, और अगर प्लूरल लेयर्स मतलब कई सारी लेयर्स हो epithelial tissue की तो हम उसको epithelia भी कहते हैं. ओके, सो एज इट इज़ वेरी क्लियर कि ये क्योंकि ये बाहर का आउटर लेयर या आउटर सरफेस के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. सो दैट इज़ बेसिकली फाउंड फेसिंग आइदर अ बॉडी either a free surface or it faces either a body fluid or the other environment, and this provide a covering or a lining for some part of the body. Okay, means it is found basically on the outermost surface of either a body part. ठीक है, और lining the blood vessels. ठीक है, सो इनका काम क्या होगा बेसिकली कि ये आउटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं या एक कोट बनाते हैं, इसीलिए इनको हम एपी मीन्स आउटर. ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर का काम, जैसे घर की बाउंड्री होती है तो बाउंड्री का काम क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, या प्रोटेक्टिव कोट या प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव वॉल around the house, isn't it? The same function is performed by the epithelial tissue also. Okay, now in the epithelial tissues we have to study about different types of epithelial tissues. They can be single layer, so they are called simple epithelium tissues, and if they are formed up of many layers of tissues, so they are known as the compound tissues. ठीक है, तो सेल टिश्यूज़ जो है एपिथेलियम में दो तरह के हो सकते हैं. अगर एक लेयर की हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़. ठीक है, और अगर कई लेयर की हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. ओके, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड with little intercellular matrix. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका यही कैरेक्टर है कि सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर ऑल्सो, ये जितने भी सेल्स हैं ये सब क्या है? आपस में एकदम दे आर सो मच टाइटली पैक्ड. ऐसा क्यों होता है? ताकि ये मॉलिक्यूल्स को जो है वो बाहर की तरफ पास करने का जो है वो पैसेज नहीं देते हैं. ठीक है, मीन्स दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि बाहर के एटमॉस्फेयर, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी चीज़ या कोई भी जर्म्स एक्सेट्रा वो एंटर ना कर सके अंदर इनसाइड द बॉडी. सो उनका काम ही होता है बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़. ओके, तो सबसे पहला क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक कि दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, एंड इफ दे आर कंपोज्ड ऑफ वन लेयर दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम, अदरवाइज दे आर कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इफ देयर इज सिंपल एपिथेलियम, so basically simple epithelium is found as the lining for the body cavities or in the ducts or in the tubes.
ठीक है। बेसिकली जो है ये कहाँ पाए जाएंगे, अगर ये सिंगल लेयर में होते हैं यानी कि सिंपल एपिथेलियम वाले टिश्यूज़ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग्स फॉर द बॉडी कैविटी, किसी भी बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग होगी उसमें पाए जाएंगे, या कोई भी तरह के डक्ट मतलब ट्यूब्स होते हैं, जैसे किडनी के डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे पाए जाएंगे, और इन द ट्यूब्स, ठीक है। और इफ़ दे आर अ कंपाउंड टाइप तो वो कहाँ पाएंगे, बेसिकली वो हमारे स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू जस्ट चेक अराउंड योर स्किन, सो द स्किन इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। एक मोटी लेयर होती है हमारे स्किन में विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल cells of the body from the external environment. Okay, so that is basically two types of epithelial tissue, simple and compound. Now on the basis of the structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into three types. They can be of squamous type, they can be cuboidal type, or they can be columnar type, ठीक है। So these are the three further classifications of the simple epithelium. Okay, so if you just check out the figure over here, अकॉर्डिंग टू द शेप्स, ठीक है, इनको नाम दिया गया है। पहला क्या है, दैट इज़ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर कि वो कैसे हैं, एक लेयर्ड हैं, ठीक है, और फ्लैटेंड सेल्स हैं जो कि बहुत ही कम इंटरसेलुलर यहाँ पे स्पेसेस है। यू कैन सी दैट सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे आर जस्ट सिंगल लेयर, और बहुत ही चिपटे या फ्लैट टाइप के होते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़। सिंपल का ये टाइप है, कौन सा टाइप है, फ्लैटेंड सेल है, इसके लिए हम इसको स्क्वामस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका शेप वी कैन सी इट इज़ अ बिट क्यूबॉइड टाइप, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड टाइप के शेप होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, और जो कॉलम टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। चूँकि ये सारे के सारे एक लेयर हैं, सिंगल लेयर हैं, तो ये सब किसके टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़। ओके, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के थ्री टाइप्स हो गए। इफ़ दे आर फ्लैटेंड सो दे आर नोन एज द स्क्वामस एपिथेलियम, इफ़ दे आर cube likes, ठीक है, so they are known as the cuboidal epithelium, and if they are column like, ठीक है, so they are known as the columnar epithelium. अब इन क्यूब और कॉलमनर सेल में अगर ऊपर की तरफ ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हो तो एक और टाइप निकल आता है विच इज़ नोन एज द सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो अगर क्यूबॉइड के ऊपर सीला निकला तो हम उसे क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे, और अगर कॉलम के ऊपर सीला निकला हो तो हम उसे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स द एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड। फाइन, नाउ इफ यू सी द we have seen the structure of the types of simple epithelium. Now we'll see where they are found and what is their function. Okay, so considering the very first, that is the squamous epithelium, you can see, so let's see the function, the position of the squamous epithelium and the function of the squamous epithelium. तो कहाँ पाया जाएगा, they are found in the walls of the blood vessels, ठीक है, and the air sacs of the lungs, and are involved in the function like forming a diffusion boundary, ठीक है। तो दैट मीन्स ये चूँकि ये एक लेयर के बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ पाए जाएंगे, ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पे कौन सा फंक्शन कैरी आउट हो रहा हो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यू ऑल मस्ट बी नोइंग, दैट इज मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इजंट इट। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही पतली मेम्ब्रेन चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होता है गैस मॉलिक्यूल्स का या वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा हो, ऐसी जगहों पर ये पाए जाएंगे। तो कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ओके, देन दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। और दोनों ही जगह पे क्या है, ब्लड वेसल्स में देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ ब्लड, और एयर सैक में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऐसे सर्फेसेस जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा हो गैसेस का या लिक्विड्स का, उस सर्फेस पे क्या पाए जाएंगे, द स्क्वामस एपिथेलियल
टिश्यूज़। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर जस्ट इरेगुलरली शेप्ड, ठीक है, विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इनकी बाउंड्रीज भी कैसी होती है, इरेगुलर होती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द शेप ऑफ द टिश्यू, देन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, structure of the shape and structure of the tissues, then the locality where it is found, and the third is the function of the particular tissue, that you should be clear with. Okay, then the next type of epithelial tissue is the cuboidal epithelial tissue, ठीक है। तो cuboidal epithelial tissue is again कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लेयर का होगा एंड क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे एक्सक्रीशन या सिक्रीशन हो रहा हो, ठीक है। स्क्वायमस कहाँ पाए जा रहे थे, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है, या डिफ्यूजन हो रहा हो, ठीक। लेकिन क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे क्या हो रहा हो, सिक्रीशन हो रहा हो या एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हमको पता है कहाँ होता है, दे आर in the ducts of the glands and the tubular parts of the nephrons in the kidneys, ठीक है। वो ग्लैंड्स के डक्ट में पाए जाएंगे या फिर ये किडनीज़ के, या किडनीज़ में नेफ्रॉन होता है। ओके, यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज़। तो किडनी में क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी इज़ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में कई सारे लंबे लंबे डक्ट्स होते हैं। तो उन डक्ट्स की लाइनिंग में क्या पाया जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मीन्स ऐसे सर्फेसेस जहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन चल रहा हो, वहाँ पे कैसे एपिथेलियल पाए जाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली जो है दे आर फाउंड इन द ग्लैंड्स एंड इन द ट्यूब्स या डक्ट्स ऑफ द किडनीज़, ठीक है। Then it is mentioned that the epithelial of the PCT of the nephron in the kidney has microvilli. कभी कभी like I told you कि अगर क्यूबॉइडल सेल्स पे ऊपर सीलिया निकला हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो किडनी की जो डक्ट्स होती है नेफ्रॉन की, उसमें जो है वो ये विलाइज या सीलियर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। मीन्स सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी पाया जाता है इनसाइड द किडनी डक्ट। ओके, then the next type of the epithelial tissue is the columnar epithelial tissues होता है। columnar कैसा होगा, they are basically column like we have studied here their structure, you can see लंबे लंबे टॉल सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक होते हैं, और उनका न्यूक्लियस जो है वो नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर के सेल्स जो है, दैट इज़ एक्चुअली द न्यूक्लियस ऑफ दोज सेल्स, ठीक है। तो ये टॉल सेल्स होंगे कॉलम लाइक, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। अब ये कहाँ पे पाए जाएंगे, दे आर बेसिकली फाउंड इन द रीजन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारा गट है, जहाँ पे फूड जो है वो या तो क्या हो रहा है, वहाँ पे गैस जितने भी एंजाइम्स है, ठीक है, या जितने भी फ्लूइड्स हैं जो डाइजेशन में काम आते हैं, या जो खाना डाइजेस्ट होता है तब जो अब्जॉर्प्शन होता है, वो चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पे क्या पाया जाएगा, द कॉलमनर एपिथेलियम इज़ फाउंड। सो बेसिकली द स्ट्रक्चर इज द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स एंड द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस कहाँ होंगे, एट द बेस होंगे। लाइक यू कैन सी ओवर हियर द फिगर, द न्यूक्लियस आर सिचुएटेड हियर एट द बेस ऑफ द सेल्स, इजंट इट। तो कैसे हैं ये, टॉल सेल्स हैं, न्यूक्लियस कहाँ है इनका, बेस पर होता है, और किसी किसी कॉलमनर में ऊपर में क्या हो सकता है, माइक्रोविलाई यानी कि वही सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे ये, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। ओके, देन द फोर्थ वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल में अगर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनके फ्री सरफेस पे, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। कॉलम के ऊपर लगा हो तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा, क्यूबॉइड के ऊपर लगा हो तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ हो जाएगा। अब सीलिया है चूँकि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, मूव करना, ठीक है, दे मूव इन अ वेवी मैनर। तो मूव करने के साथ साथ क्या करते हैं, पार्टिकल्स को जो है वो एक तरह से पुश करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। तो बेसिकली ये सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे कैसा फंक्शन हो, टू मूव द पार्टिकल
और द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जहाँ पे पार्टिकल्स को ढकेलना हो आगे की तरफ, तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं टू द पार्टिकल्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस, सॉरी, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. ओके, तो बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे? दे आर फाउंड इन द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहाँ होता है? फिर से ये लंग्स जो होते हैं, लंग्स के जो पैसेज होता है, जो ट्यूब होता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। पहले क्या होता है? विंड पाइप, देन टू प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस, देन छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसमें एयर सैक लगा होता है। तो वो ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब्स में, जैसे ही एग जो है वो मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको पुश कराने का काम करता है ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा? इन द हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियम, okay, the cuboidal epithelium, the columnar epithelium and the ciliated epithelium. You should know about the structure, the position, the area where they are found and their functions. Okay, now the next is that some of the columnar or the cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. ठीक है, कुछ ऐसे कॉलमनर और क्यूबॉइडल होते हैं जिनमें सीलिया लगा होता है तो हम उनको सीलिएटेड बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भर जाते हैं, ठीक है, और वो क्या कहलाएंगे? अब वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। दे बिकम ग्लैंड्स, दे कंटेन ग्लैंड्स इन देम। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ग्लैंड्स जो है वो एक्चुअली अपने अंदर क्या फिल किए रहते हैं? सर्टेन एंजाइम्स और सर्टेन हार्मोन्स और सर्टेन केमिकल्स, लिक्विड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियम विच हैव गॉट स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द सर्टेन लिक्विड्स या केमिकल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। और ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ओके, सो लाइक यू कैन सी, सॉरी, यू कैन सी ओवर द फिगर ओवर हियर, ठीक है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। यू कैन सी कि ये एपिथेलियल थे, लेकिन इनके अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन हो चुकी है और ये भर चुके हैं स्पेशल टाइप के फ्लूइड से, ठीक है, और इनको अब हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम्स, दे कैन बी यूनिसेल्युलर इफ़ दे कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, एंड दे कैन बी मल्टी सेल्युलर इफ़ दे आर कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर एक सेल का बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो कुछ सेल्स होते हैं जिनसे एंजाइम निकलता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। और अगर दे आर मेड अप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो टू टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर एग्जाम्पल इज गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड मल्टी सेल्युलर एग्जाम्पल इज द सलाइवरी ग्लैंड। ओके, if you talk about the mode of pouring of the secretions, the glands are divided into two categories. This you all must be knowing कि exocrine और endocrine दो तरह के glands होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मेन डिफरेंस क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट ग्लैंड होते हैं, मींस उनका जो सिक्रेशन होता है वो किसी डक्ट के थ्रू जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाता है। और एंडोक्राइन्स क्या होते हैं? वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, उनमें कोई डक्ट्स नहीं होता है, कोई ट्यूब लगा नहीं होता है, डायरेक्टली वो अपना डिस्चार्ज कहाँ थ्रो करते हैं या फ्लो होता है इनसाइड द ब्लड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या है? डक्ट ग्लैंड्स है, क्योंकि उनके में डक्ट्स मतलब सिंपली ट्यूब्स, ठीक है। ग्लैंड होगा, जैसे ये ग्लैंड है तो ये क्या है? अगर यहाँ पे ऐसे ट्यूब निकला हो, ठीक है, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर उसमें ट्यूब ना हो, वो डायरेक्ट अपना डिस्चार्ज करे ब्लड में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स वी ऑल नो दैट इट इज़ that they secrete mucus, saliva
ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, एंड अदर सेलुलर प्रोडक्ट्स, एंड दे आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और द ट्यूब्स। लेकिन एंडोक्राइंस क्या होते हैं, वो उनका सिक्रीशन क्या कहलाता है, हॉर्मोन्स कहलाता है, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। तो एंडोक्राइन में डायरेक्ट सिक्रीशन का होगा, ब्लड में होगा, लेकिन एक्सोक्राइन में सिक्रीशन का होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब होता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर पूछे तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, और अगर बेसिस ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्ज पूछे तो दे कैन बी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। तो ये सारे टाइप्स हो गए किसके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, मतलब कि एक लेयर की सेल्स होगी एपिथेलियल की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज़ द कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड का मतलब भी क्या हो गया कि द एपिथेलियल विल बी composed ऑफ मैनी layers. You can see there are different layers of epithelial cells, so they are multi-layered, ठीक है। तो बिकॉज दे आर composed ऑफ मोर देन वन लेयर, सो दे हैव वेरी लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमको पता है कि सिक्रीशन जितनी पतली लेयर्स होती है, जितनी ही थिन लेयर होगी डायमीटर की, उतनी एफिशिएंट सिक्रीशन, उतनी एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, द लेयर इज़ थिक बिकॉज दैट इज़ मल्टी लेयर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक यहाँ के जो फंक्शन होगा कंपाउंड एपिथेलियम का, वो रिस्ट्रेन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यूज़, अंदर की जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये सिर्फ काम करता है, ठीक है। जैसे कि बाउंड्री है, वो घर की बाउंड्री क्या है, घर की बाउंड्री में वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट यूज़ दैट बाउंड्री फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर हाउस। ठीक उसी तरह से कंपाउंड एपिथेलियम में लेयर्स बहुत सारी होती हैं, और हमें पता है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही फाइन लेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जितनी फाइन लेयर्स होगी उतनी आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि लेयर्स मोटी हो गई हैं, ज़्यादा मल्टी लेयर्स हो गई, इस वजह से ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं प्ले करते हैं। दे ओनली हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग tissues against chemical and mechanical stresses, ठीक है। देन प्लस दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स, ठीक है। तो हमारे स्किन की कवरिंग इज़ ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। फिर और कहाँ पाया जाएगा, इन द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो माउथ की कैविटी है, ठीक है, जो हमारी मॉइस्ट मीन्स, मॉइस्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड सलाइवा, जो है वो बकल कैविटी क्या होता है, मॉइस्ट होता है बिकॉज ऑफ द सलाइवा। तो वो जो लेयर है मुंह की, ठीक है, मुंह के कैविटी की, तो वो भी किससे बनी हुई है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम। फिर also the surface, inner surface of the pharynx, the inner lining of the salivary glands and of the pancreatic ducts। तो ये जगहों पे क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। Okay, the surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts of salivary glands and of the pancreatic ducts. So these are the places where the compound epithelium tissues is found. Now like I told you कि जितनी ही पतली surface होगी, okay, like if these are two cells, okay, so the distance between or the gap between the two cells will determine कि कितनी efficiently जो है वो molecules एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, isn't it? अगर ये जो गैप है ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब कि एफिशिएंसी जो है वो एक्सचेंज की वो कम हो सकती है, isn't it? तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन कि दे आर हैविंग वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन देम, isn't it? तो सबसे पहला जो हमने लाइन पढ़ा था कि ऑल द सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। इसका मतलब कि सारे सेल्स क्या हैं, आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। So in nearly all animal tissues, the specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Okay, that means
So basically there are three types of junctions that are found between the cells in the epithelial tissues. ठीक है, और इन स्पेशलाइज्ड जंक्शंस का काम क्या होगा कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स. लाइक वी कैन सी द फिगर ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे सेल्स क्या है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से. तो इन दूसरे में जो टाइट कनेक्शन है वो एक्चुअली क्यों होता है, या इनके बीच का जो जंक्शंस है, इन सेल्स के बीच का इंडिविजुअल जंक्शंस, वो क्या होता है. तो दैट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली. दैट इज़ टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शन. ठीक है, टाइट जंक्शन का काम क्या होगा कि दे हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज़. ठीक है, तीन तरह के जंक्शंस होते हैं. द फर्स्ट इज़ द टाइट. तो टाइट होता है तो ऑब्वियसली टाइट का मतलब ही होगा कि वो टाइट दो सेल्स जो है आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे. और क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो उनके थ्रू जो है वो पास ना कर पाए, मीन्स ये मॉलिक्यूल्स को या वो सब्सटेंसेस को जो है वो बाहर की तरफ जाने से रोकते हैं. ठीक है, एपिथेलियल का काम क्या है, जैसे कि बाउंड्री का काम क्या होता है घर के, कि वो अंदर के लोगों को बाहर आने से और बाहर के लोगों को अंदर आने से रोकता है. ठीक है, मीन्स स्पेशली बाहर के लोगों को अगर देखा जाए तो दे प्रिवेंट द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कमिंग इन साइड द सेल. तो इसीलिए जो है वहाँ पे हम same function that is performed by these tight junctions also, that they prevent the substances to move across the membranes. तो ऐसे junctions को हम क्या बोलते हैं, tight junctions. Okay, then the next is adhering junctions which perform cementing to keep neighboring cells together. दूसरे टाइप का जंक्शन क्या कहलाता है, adhering junction. adhering junction का मतलब क्या हुआ कि पहला क्या था, जैसे टाइट जंक्शन, सपोज दिस आर द सेल्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे. दी सेल्स आर टाइटली पैक्ड और ये सब्सटेंसेस को बाहर जाने से क्या करेंगे, रोकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ये हो गया. दूसरा क्या है, अधेयरिंग जंक्शंस. अधेयरिंग जंक्शंस क्या करते हैं कि इन दो सेल्स के बीच में जो है वो सीमेंट का, जैसे ईंटों की को जोड़ा जाता है सीमेंट से. ठीक है, तो वो सीमेंटिंग का काम करते हैं. तो ऐसे जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द एडहियरिंग जंक्शंस. और तीसरा क्या है, गैप जंक्शंस है. दैट फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स. समटाइम्स क्या होता है कि सपोज कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली नहीं अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, डायरेक्टली टाइटली लिंक नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, सपोज लाइक दिस. ठीक है, तो इन दो सेल्स के बीच में जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस. और ये गैप जंक्शंस एक्चुअली में कैसे होते हैं, दे आर समवॉट लाइक दिस, कि दो सेल्स के बीच में जो है वो एक ब्रिज लाइक कनेक्शन होता है. ठीक है, लाइक दिस. तो ये ब्रिज लाइक कनेक्शन जो है वो एक्चुअली में क्या है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन. ठीक है, दो सेल्स के बीच का जो एक ब्रिज बनता है, एक कनेक्शन बनेगा, रोड बनेगी, जो किसकी बनी होगी, साइटोप्लाज्म की बनी होती है. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, दिस इज़ नोन एज दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, तो दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू एडजॉइनिंग सेल्स, ठीक है, in the which forms the gap junctions is termed as plasmodesmata. This question has been asked in your competitive exam. Okay, तो दो सेल्स के बीच में ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे टाइट सीमेंट की तरह पैकेजिंग नहीं होती है एपिथेलियल में, लेकिन कैसे वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, एंड दोज कनेक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि ईजी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स के, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो या लार्ज मॉलिक्यूल्स हो. ठीक है, सो दीज वर द three types of junctions which are present in the epithelial tissues. So this was all about your epithelial tissues. Hope you have understood it. Thank you.